السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیر وائس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ صدیوں پہلے کی بات ہے، افریقہ کے ایک جنگل میں ایک قبرستان تھا۔ ارد گرد کی آبادیوں کے لوگ اس قبرستان کے قریب سے بھی نہیں گزرتے تھے۔ یہ ایک پرانا قبرستان تھا جس کے متعلق مشہور تھا کہ اس قبرستان میں ایک زندہ مردہ رہتا ہے جو کہ راہگیروں اور قریب کے گاؤں والوں کو رات کی تاریکی میں تنگ کرتا ہے۔ خوف اور دہشت سے لوگ گاؤں کو چھوڑ کر قریبی شہر میں چلے گئے۔ چند دنوں بعد ادھر شہر میں ایک جادوگر نے افراتفری برپا کر دی۔ گاؤں کے لوگوں نے مشہور کر دیا کہ زندہ مردہ اب شہر میں آ گیا ہے۔ جب لوگوں نے ان سے زندہ مردہ کے عجیب و غریب واقعہ سنے تو حیران و پریشان ہو گئے۔ شہر میں بھی زندہ مردہ کی کئی کہانیاں گردش کرنے لگی۔ لوگ گھبرا گئے اور رو رو کر بھاگ کر شہروں میں پناہ تلاش کرنے لگے۔ اس خوفناک اور ڈراؤنی شکل والے جادوگر نے کئی معصوم شہریوں کو جان سے بھی ختم کر دیا۔ خوف اور دہشت سے شہر خالی ہو گیا۔ چند لاشیں شہر کے مختلف سڑکوں پر بکھری پڑی تھی جو کہ جادوگر کے ظلم کا شکار ہوئے تھے۔ اسی زمانے میں ملک فارس پر ایک انصاف پسند اور عقل مند بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ بادشاہ کا ایک بیٹا شہزادہ نور اپنے باپ کی طرح عقل مند تھا۔ وہ غریبوں کی مدد کرنا اپنا فرض سمجھتا تھا۔ ایک دن اس نے اپنے ابا حضور سے کہا کہ وہ افریقہ کے جنگلوں میں شکار کے غرض سے جانا چاہتا ہے۔ بادشاہ نے اجازت دے دی اور ساتھ ایک سپہ سالار کو بھی بھیج دیا۔ دونوں بحری جہاز سے افریقہ کے اس خوفناک جنگل اور شہر میں پہنچے جو خوفناک جادوگر کی وجہ سے خالی پڑا تھا۔ انہیں شہر میں کوئی انسان نظر نہیں آیا۔ سڑکوں پر انسانی ہڈیوں کے ڈھانچے پڑے ہوئے تھے۔ یہ دیکھ کر وہ اور بھی پریشان ہوئے اور شہر کا یہ خوفناک ماحول دیکھ کر وہ دونوں بحری جہاز سے واپس اپنے ملک آ گئے اور بادشاہ سے اس شہر کے خوفناک ماحول کا واقعہ سنایا۔ یہ سن کر بادشاہ بھی فکر مند ہوا۔ بادشاہ نے حکم دے کر ایک شاہی نجومی کو بلایا۔ نجومی نے اپنے علم سے بتایا کہ افریقہ کے اس جنگل میں ایک ظالم جادوگر آ گیا ہے جس نے وہاں کے شہر پر آفت نازل کر دی ہے۔ ابا حضور، شہزادہ نجومی کی بات سن کر بولا، اب مجھے اجازت دے تاکہ میں اس ظالم اور خطرناک جادوگر کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں۔ میں نہیں چاہتا کہ لوگ خوف اور پریشانی کی زندگی بسر کریں۔ بیٹے، بادشاہ نے کہا، اگر تمہیں کچھ ہو گیا تم جانتے ہو میرا کیا ہوگا۔ تم اس تخت کے وارث ہو اور اب میں بوڑھا ہو چکا ہوں۔ اب شہزادہ بولا، یہ ایک نیکی ہوگی، انسانی خدمت ہوگی، مخلوق خوش ہوگی تو خدا بھی خوش ہوگا۔ ہمت کر کے بادشاہ نے شہزادے کو جانے کی اجازت دے دی۔ نجومی نے شہزادے سے کہا کہ وہ مہم پر جانے سے پہلے اس سے ضرور ملے۔ ابا حضور، شہزادے نے بادشاہ سے کہا، آپ میری فکر نہ کریں بلکہ ان لوگوں کی فکر کریں جو اس مصیبت میں گرفتار ہیں۔ آپ صرف میری کامیابی کے لیے دعا کریں، خدا تمہارا حامی ناصر ہو۔ بادشاہ نے کہا، آمین۔ شہزادہ بولا۔ سفر پر روانگی سے قبل شہزادہ نور نجومی کے پاس گیا اور ضروری ہدایات کے متعلق بات کی۔ شہزادہ حضور، نجومی نے کہا، سفر کے دوران نماز باقاعدہ ادا فرمائیے اور خدا کی حمد و ثنا کا ذکر جاری رکھے کیونکہ خدائے عظیم سے بڑی طاقت کوئی نہیں۔ ایسا ہی ہوگا، شہزادہ نور نے کہا۔ نجومی نے کہا، جادوگر کے پاس جانے سے پہلے تمہاری ملاقات ایک بزرگ سے ہوگی، وہی تمہیں باقی ہدایت دیں گے۔ شہزادہ نور نے بادشاہ سلامت کی اجازت سے چند جانثار ساتھیوں کو ساتھ لیا اور سفر پر روانہ ہو گیا۔ بحری جہاز کی مدد سے شہزادہ اور اس کے ساتھی ایک دن رات کی تاریکی میں افریقہ کے ایک جنگل میں پہنچے۔ شہزادے کے حکم کے مطابق جہاز کو وہیں لنگر انداز کر دیا گیا۔ رات کافی ہو گئی تھی، اس لیے شہزادہ اور اس کے ساتھی ایک بڑے سے درخت کے نیچے لیٹ گئے۔ اچانک زندہ مردہ وہاں پہنچ گیا۔ اس نے رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھایا اور شہزادے کے کچھ ساتھیوں کو مار ڈالا اور کچھ ساتھی ادھر ادھر بھاگنے لگے، لیکن زندہ مردہ نے انہیں بھی پکڑ کر مار ڈالا۔ اب شہزادہ تنہا رہ گیا، لیکن اس نے ہمت نہ ہاری۔ صبح کی روشنی نکلتے ہی وہ اکیلا سفر پر روانہ ہو گیا۔ وہ جس غرض سے نکلا تھا وہ ہر حالت میں پورا کرنا تھا۔ وہ بھٹکتا ہوا ایک جنگل میں پہنچا۔ وہ اس حد پر ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ اس نے دیکھا ایک بزرگ اس کی طرف چلے آ رہے ہیں۔ اسے نجومی کی بات یاد آ گئی۔
बुजुर्ग ने शहजादे को पीने के लिए पानी दिया। शहजादे ने पानी पी लिया और कहा, बाबा आप तो बड़े मेहरबान आदमी हैं। बुजुर्ग ने कहा, तुम एक बाहिम्मत इंसान हो, तुम्हारा बाप तुम्हारी कामयाबी के लिए बहुत दुआएं मांग रहा है। हिम्मत और मेहनत इंसान को मंजिल तक पहुंचा देती है। क्या आप वही भाई हैं जिनके मुतालिक नजूमी ने मुझसे कहा था? मैं वही हूँ, बुजुर्ग ने कहा। कुछ देर शहजादा और बुजुर्ग बातें करते रहे। फिर बुजुर्ग ने शहजादे को कुछ खाने को दिया। शहजादे ने खूब जी भरकर खाना खाया। उसे सफर के दौरान पहली मर्तबा इतना अच्छा और लजीज खाना मिला था। खाने से फारिग होने के बाद शहजादे ने बुजुर्ग से कहा, आप ही मेरी मदद फरमाइए, क्योंकि आपके मशवरे के बगैर मैं अफ्रीका के परेशान हाल लोगों की मदद नहीं कर सकूंगा। शाबाश बेटे, बुजुर्ग ने कहा। ये लो, कालीन की मदद से तुम जादूगर तक पहुंच जाओगे और इस झिल्ली से रास्ता खुद ब खुद साफ हो जाएगा। और ये तीसरी चीज सफूफ है, इस पर बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर जो कहोगे वह हाजिर हो जाएगा। आपने मेरी मुश्किल हल कर दी। बुजुर्ग ने कहा, अब तुम इस कालीन की मदद से जा सकते हो, लेकिन बेटे ये कालीन तुम्हें आधे रास्ते तक ले जाएगा, इसके आगे तुम्हें खुद जाना होगा। जी अच्छा, शहजादे ने कहा। यहाँ से कितनी दूर जादूगर रहता है? यहाँ से शुमाल की तरफ 500 मील के फासले पर एक पहाड़ के अंदर एक गार है, उसमें जादूगर रहता है। अब शहजादा नूर कालीन जमीन पर रखकर उस पर बैठ गया और सफर पर रवाना हो गया। जब कालीन ने आधा रास्ता तय कर लिया तो खुद ही खुद जमीन पर उतर गया। जब शहजादा कालीन से नीचे उतरा तो कालीन फौरन गायब हो गया। शहजादे ने डब्बी में से सफूफ निकाला और कहा, मुझे घोड़ा चाहिए। फौरन एक आला नस्ल का घोड़ा हाजिर हो गया। शहजादा उस पर बैठकर जादूगर की तरफ चल पड़ा। करीब ही एक बैठे हुए उल्लू ने उसे जादूगर के करीब जाते देखा तो फौरन भड़ककर जादूगर के पास गया और शहजादे के बारे में बताया। जादूगर ने फौरन एक फौज बनाई और हुक्म दिया कि वो शहजादे को यहाँ पहुँचने से पहले ही खत्म कर दे। फौज शहजादे की तरफ बढ़ी। जब शहजादे ने फौज को अपनी तरफ आते देखा तो समझ गया। उसने फौरन डब्बी में से थोड़ा सा सफूफ निकाला और उस पर फेंक कर कहा, एक फौज हो जाए। देखते ही देखते एक फौज तैयार हो गई और दोनों फौजों के दरमियान जंग छिड़ गई। शहजादा एक तरफ हो गया, खूब लड़ाई हुई। आखिरकार जादूगर की फौज मारी गई। जादूगर बहुत हैरान हुआ। फिर उसने अपने जादू के जोर से एक बहुत बड़ा पहाड़ उठाकर शहजादे की तरफ फेंका। शहजादे ने बुजुर्ग की दी हुई छड़ी की नोक उस पहाड़ की तरफ कर दी। पहाड़ फौरन गायब हो गया। अब जादूगर ने एक बहुत बड़ा सांप शहजादे के रास्ते में खड़ा कर दिया। शहजादे ने फौरन छड़ी की नोक सांप की तरफ कर दी तो वो भी गायब हो गया। अब जादूगर ने आसमानी चुड़ैलें और बुलाई शहजादी की तरफ भेजी ताकि वो शहजादे को नीज़ते नाबूद कर दे। तो जल्दी ही शहजादे ने आसमान की तरफ सफूफ खींचा और कहा, आसमानी चुड़ैलें और बलाएं बन जाए। अचानक बहुत सी बलाएं और चुड़ैलें बन गई। इस तरह चुड़ैलों में भी जंग हुई। चंद लम्हों बाद जादूगर वाली तमाम चुड़ैलें हलाक हो गई। अब तो जादूगर को शहजादे पर बहुत गुस्सा आया। उसने आग का एक गोला शहजादे की तरफ फेंका। आग की सुर्ख की रोशनी की वजह से आसमान का रंग भी सुर्ख हो गया। आग का गोला शहजादे के करीब आकर गिरा और चारों तरफ आग फैल गई। शहजादे ने डब्बी में थोड़ा सा सफूफ निकाला और आग पर फेंक कर कहा, पानी बन जा। हर तरफ पानी फैल गया और आग बुझ गई। अब शहजादा जादूगर की तरफ बढ़ने लगा तो मुर्दों की एक टोली ने उसका रास्ता रोक लिया। वो मुर्दों का मुकाबला करता रहा और तमाम को खत्म कर डाला। अब वो आगे बढ़ा। पहाड़ के करीब पहुंचकर उसने एक गार देखा और वो उसमें दाखिल हो गया। अंदर अंधेरा ही अंधेरा था। शहजादा आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ अंदर बढ़ता रहा। वो एक रोशनी के पास पहुंच गया। शहजादा एक कमरे में दाखिल हुआ। बड़े जोर से दरवाजा बंद हो गया और जादूगर ने जोरदार कह कहा लगाया और कहा, अब तुम इस कमरे से बाहर कभी नहीं निकल सकते। अब शहजादा बहुत परेशान हुआ। जादूगर ने उसे एक कमरे में कैद कर दिया था। ये एक बहुत बड़ा कमरा था। वहाँ शहजादे को एक बहुत बड़ा पिंजरा नजर आया जिसमें एक खूबसूरत शहजादी कैद थी और वो बुत बनी हुई थी। शहजादे नूर ने छड़ी की नोक लड़की के जिस्म से लगाई तो वो अपनी असल हालत में आ गई। उस लड़की ने बताया कि मैं मुल्क ईरान की शहजादी हूँ। मेरा नाम शहजादी गुल है।
इस जादूगर ने 3 साल से मुझे कैद कर रखा है। शहजादे ने पूरे कमरे का जायजा लिया। अचानक शहजादे को छत में से एक सुराख नजर आया। जब शहजादा नूर ने उसमें छड़ी की नोक डाली तो सुराख बड़ा हो गया और ये दोनों सुराख के जरिए बाहर निकल आए। जब वो दोनों गाढ़ से बाहर आए तो जादूगर उनके सामने खड़ा था। वो गुस्से में शहजादे की तरफ बढ़ा। उसने मुंह में कुछ पढ़ा और शहजादे की तरफ फूंक मारी। शहजादे पर उसका कुछ असर भी ना हुआ। ये देखकर जादूगर घबरा गया। उसे मालूम हो गया था कि उसका जादू शहजादे का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। शहजादे ने जादूगर की घबराहट से फायदा उठाकर अपनी तलवार की मदद से उसका सर तन से जुदा कर दिया। जादूगर तड़प तड़प कर मर गया। शहजादे ने जादूगर की लाश पर सफूफ डाला। एक जोरदार धमाके के साथ जादूगर की लाश गायब हो गई। ये देखकर शहजादा और शहजादी बहुत खुश हुए। अचानक वही बुजुर्ग आए और कहा, शाबाश बेटे, जादूगर को खत्म करके तुमने शहजादी को भी आज़ाद कर दिया और बहुत से लोगों की परेशानियां भी दूर कर दी है। अब तुम उस कब्रिस्तान जाओ जहां जिंदा मुर्दा रहता है। बल्कि अब वो जिंदा मुर्दा नहीं बल्कि एक नौजवान लड़का है। तुम उसकी मदद करो। ये कहकर बुजुर्ग गायब हो गए। शहजादा और शहजादी उस कब्रिस्तान में पहुँचे। एक कब्र में से उन्हें आवाज़ आई। शहजादे ने वो कब्र खोदी तो उसमें एक नौजवान लड़का निकला। उसने शहजादे नूर का शुक्रिया अदा किया और कहा, मैं आपकी बात की और हिम्मत की दाद देता हूँ। आपने सिर्फ मुझे ही नहीं उस जादूगर की कैद से आज़ाद करवाया बल्कि अपने शहर के लोगों को भी उस जालिम जादूगर के जुल्म से निजात दिलाई। शहजादा नूर, शहजादी गुल और वो नौजवान लड़का अफ्रीका के उस शहर में गए जो जालिम जादूगर के तिलिस्मे का निशाना बना था। उस शहर के लोगों ने शहजादे का बहुत शुक्रिया अदा किया जिसकी बदौलत उन्हें दोबारा अपने शहर जाना नसीब हुआ। एक आदमी के कहने पर शहजादे ने बताया कि अब वो शहजादा नूर और उसके हमरा शहजादी गुल और नौजवान लड़का है जिसको जादूगर ने जिंदा मुर्दा बना दिया था। तमाम लोगों ने शहजादे का शुक्रिया अदा किया। इस तरह शहर में दोबारा चहल पहल शुरू हो गई। शहजादा नूर शहजादी गुल को लेकर ईरान पहुंचा। मुल्क ईरान का बादशाह शहजादी को देखकर बहुत खुश हुआ और इस तरह शाही ईरान ने शहजादी गुल की शादी शहजादे नूर से कर दी। शहजादा शहजादी गुल को लेकर मुल्क फारस आया तो बादशाह अपने बेटे को देखकर बहुत खुश हुआ। शहजादे ने बादशाह को अपनी दास्तान सुनाई। शहजादी गुल के बारे में भी बताया। बादशाह ने शहजादी गुल को अपने सीने से लगाया और दोनों को दुआएं दी। इस खुशी के मौके पर 3 दिन तक मुल्क में जश्न मनाया गया और तमाम कैदियों को रिहा कर दिया गया और सब हंसी खुशी रहने लगे। दोस्तों, उम्मीद है कि ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको इस तरह की कहानी में इंटरेस्ट है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। शुक्रिया।